حضرت علی احمد صابر کی جب ہر طرح سے پرورش کی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں عرض کی، بچہ آپ کے زیر سایہ رہے۔ حضرت بابا صاحب نے آپ کے والدہ ماجدہ کو ہرات واپس جانے کی اجازت دی۔ لخت جگر شرم حیا کی پتلا ہے، منہ سے کبھی کچھ نہ مانگے گا۔ حضرت بابا صاحب نے حضرت صابر مخدوم کو بلا کر ان کے سامنے ہی حکم دیا کہ کل سے لنگر کی تقسیم تمہارے سپرد رہے گا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ نے سماعت کیا حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ جب آپ کو ہرات سے لے کر چلتی ہے اور پاک پٹن پہنچ جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ بیوہ ہو گئی تھی، جس کے کارن آپ کے گھر میں تنگی چل رہا تھا، غریبی تھا، جس سے حضور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرورش میں پریشانیاں دشواریاں آ رہی تھی، مگر آپ کے والدہ کو حسرت تھی کہ صابر روحانی علم اور دینی اور دنیاوی سارے علم حاصل کرے، مگر غریبی کے کارن یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر کیونکہ آپ بابا فرید کے بھانجے تھے اور حضرت صابر پاک علیہ الرحمہ کے والدہ آپ کی بڑی بہن تھی، خیال کر کے آئی کہ بھائی کے لنگر میں روز ہزاروں لوگ کھاتا ہے پلتا ہے، اس میں ایک میرا بچہ پل بھی جائے گا اور بابا فرید کے زیر سایہ علم حاصل کر لے گا، دینی اور دنیاوی اور روحانی سارا علم حاصل کر لے گا۔ اس خیال سے آپ بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ بابا فرید خوش ہو کر اپنے بھانجے کو اپنے پاس رکھے اور ان کو دینی علم دینا شروع کیا۔ اور پھر ایک سمے ایسا آیا کہ آپ ایک محفل سجائے اور اسی محفل کے اندر آپ نے اپنے بھانجے حضور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے دست حق پر مرید کر لیا، اور جہاں آپ نے مرید کیا وہاں بہت سارے اولیاء کاملین بزرگان دین کی مجمع تھا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، پھر تبرکات بٹے، فاتحہ خوانی ہوئی۔ یہ سب واقعات ہو جانے کے بعد کچھ سمے تک آپ کے والدہ ماجدہ وہیں رہی، پاک پٹن میں ہی رہی۔ پھر جب آپ دیکھتی ہے کہ بچہ کا پرورش بہتر ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے آنے کے ارادہ کرتی ہے۔ آئیے اس کے بعد کی واقعات آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت کی والدہ صاحبہ کا ہرات کو واپس جانا۔ جب آپ دیکھتی ہے کہ بچہ کی پرورش اچھے سے ہونے لگی تو آپ ارادہ کرتی ہے کہ اب ہم واپس اپنے وطن چلے جائیں۔ حضرت علی احمد صابر کی جب
हर तरह से परवरिश की तो आपकी वालदा माजदा ने हजरत बाबा साहब की खिदमत में अर्ज की कि मेरे बच्चे की मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इल्म ज़ाहिरी और बातनी की तालीम व तरबियत हो रही है, और अब मेरा इरादा है कि बच्चा आपके जेरे साया रहे और मुझे वापस वतन हेरात जाने की इजाज़त दे। चुनांचे हजरत बाबा साहब ने आपकी वालदा माजदा को वापस हेरात जाने की इजाज़त दे दी, जिसका जिक्र तज़किरा निगारों ने ये किया। चलते वक्त अपने भाई से कहा कि मेरा लख्ते जिगर शर्म व हया का पुतला है, मुंह से कभी कुछ न मांगेगा। मेरे बच्चे को भूख प्यास की तकलीफ़ न हो। हज़रत बाबा साहब ने हज़रत मखदूम साहब को बुलाकर, यानी मखदूम साबिर को, हज़रत मखदूम साहब को बुलाकर उनके सामने हुक्म दिया कि कल से लंगर की तकसीम तुम्हारे सपुर्द है। सुबह से लंगर मसाकीन और फ़ुकरा को तुम ही तकसीम किया करोगे। ये सुनकर आपकी वालदा माजदा खुश हो गई। उसके बाद आपकी वालदा माजदा ने अपने भाई यानी हजरत बाबा साहब की खिदमत में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कुछ अरसा हेरात रह कर वापस आऊँगी, और जब मैं वापस आऊँगी तो आप अली अहमद की शादी अपने दुख्तर नेक अख्तर के से करने की मतमनी हो। तो इस पर हजरत बाबा साहब ने हंसकर जवाब दिया कि आप जब वापस आएगी तो जिस तरह आपका दिल चाहेगा कर लेना, क्योंकि दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं और तुम ही हर किस्म का इख्तियार है। हजरत बाबा साहब के जवाब पर आपके वालदा माजदा ने इत्मीनान का इजहार किया। इतना कहने के बाद आप हेरात की तरफ वापस लौट गई। आपके वालिदा माजदा के जाने के बाद हजरत बाबा साहब अलैहिर्रहमा गिना का आलम था कि कई रोज माफ़ कीजिएगा हजरत, बीच में एक लाइन छूट गया था। हजरत बाबा साहब अलैहिर्रहमत 669 की हिजरी 669 हिजरी की करमुल तफाफ के साये में उलमा और रूहानी मकामात तय करते रहे। उनके हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के जेरे साया में हजरत साबिर पाक 669 हिजरी की से इल्म दुनियावी और ज़ाहिरी बातनी हासिल तय करते रहे। सब्र कना का ये आलम था कि कई रोजे से होते थे।
जब कभी कुछ मिल जाते जिससे रोज़ा इफ्तार फरमा लेते, वरना सब्र व शुक्र करके सुकून क़ल्ब महसूस करते। नादरीन, तो ये वाक़यात आपने समाअत किया। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वालिदा जब आपको अपने भाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में छोड़ जाती हैं और इत्मीनान कर लेती है कि बच्चा मेरा यहाँ पढ़ लिख जाएगा, मकाम मरातिब हासिल करेगा और पालन परवरिश भी अच्छा हो जाएगा, खाने पीने का कोई दिक्कत और परेशानी नहीं रहेगी, और आप वहाँ से निकलने लगती है तो अपने भाई से कहती है कि बच्चा आपके पास रहेगा, मेरा लखते जिगर अपनी मुंह से कभी कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि ये शर्म और हया का पुतला है। बाबा साहब इत्मीनान दिलाने के लिए हज़रत साबिर पाक अलैहिर्रहमा को अपने पास बुलाते हैं। वहाँ पर आपकी अम्मी भी है और आपके अम्मी साहिबा के सामने कहते हैं कि साबिर, अब से लंगर का तकसीम तुम करोगे और कल सुबह से गरीबों को, फ़ुक़रा को तुम लंगर बांटोगे। आपके अम्मी को इत्मीनान हो जाता है, आपकी अम्मी चली जाती है। आप बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं परवरिश पाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं। कई कई रोज़ आप रोज़ा रखते हैं। ये वाक़यात आपने समाअत किया। इंशाअल्लाह इसके आगे वीडियो में हज़रत साबिर पाक अलैहिर्रहमत का रियाज़त व इबादत का वाक़यात मैं पेश करूँगा। और लंगर तो आप बेशक चला रहे थे, बाँट रहे थे, तकसीम कर रहे थे, मगर उसके बाद क्या वाक़यात गुज़रा, इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में आप समाअत फरमाएंगे। वीडियो पसंद आया इस तरह के वाक़यात सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कुछ कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वाक़यात को शेयर करें। आप खुद पढ़ें, सुने, अपने घरों में बच्चों को सुनाएं, दोस्तों अहबाब को सुनाएं, एक माहौल बनाएं। बुजुर्गान दीन की वाक़यात सुनने से फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो नेक महफ़िल में बैठता है और नेक बंदे की बात को सुनता है, उस महफ़िल के ज़िक्र मैं आसमान पे करता हूँ, और जो लोग उस नेक महफ़िल में बैठे रहते हैं उसके अमाल नामा में नेकियां लिखी जाती है, और फ़ैज़ और बरक़ात से नवाजता हूँ। और बुजुर्गान दीन अपने किसी किताब में लिखते हैं कि 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है एक घड़ी नेक महफ़िल में बैठना। नादरीन, तो कहने का मतलब यह है कि आप वाक़यात सुने और माहौल बनाएं, इससे फ़ायदा होगा कि आपके घर में रहमत व नूर की नुज़ूल होगा। बुजुर्गान दीन की वाक़यात के फ़ैज़ ये होता है कि आपके घर में बलाएँ होगा, मुसीबतें होगा। अल्लाह ताला अपने उस नेक बंदे के सदक़े उसे आपको महफूज रखेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।